So till now we have watched the overview of the topic, that what does it mean concentration and dilution of urine. Now we are moving ahead with countercurrent mechanism. So let's watch it. Countercurrent mechanism is responsible for creation of hyperosmolar medullary interstitium. तो जब हम hyperosmolar medullary interstitium की बात कर रहे हैं कि that is one of the prerequisite of फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो आपको ये मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी हो जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि ये हाइपर ऑस्मोलर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो काउंटर करंट, पहले वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं. करंट मीन्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन टू vessels or two pipes are adjacent to each other. The fluid is flowing in both of these two, which are parallel to each other also, but the direction of the flow of the fluid is opposite to each other. So in the opposite direction the fluid is moving in two parallel adjacent vessels. That is called counter current. तो ऐसा अरेंजमेंट किडनी में आपको मिलता है, कहां पे? लूप ऑफ हेनले में. So in the loop of Henle, one side, that is your descending limb, the fluid is moving this direction, and in ascending limb the fluid is moving in up direction. So the movement of fluid is opposite to each other. These two limbs are adjacent to each other, parallel to each other, so these are making the counter current system. अब काउंटर करंट सिस्टम जो है वो दो तरह से काम करता है. एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर. ये दोनों मिल के पूरा काउंटर करंट सिस्टम बनाते हैं. तो मल्टीप्लायर इज वर्किंग एट द लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो हमने अभी आपको बताया कि ये कैसे काउंटर करंट का काम करता है. एंड एक्सचेंजर जो है इट वर्क्स एट द लेवल ऑफ वासा रेक्टा. व्हाट इज दैट वासा रेक्टा? Vasa recta is what? Vasa recta is the part of peritubular capillary network which makes the loop. It makes the loop outside of loop of Henle. It is present adjacent to loop of Henle, outside of it, and here this is also making one more counter current where the blood is moving in opposite direction here and up. So this is helping in exchanging the solutes, and multiplier, it makes the medullary hyperosmolar medullary interstitium. So multiplier is the main function. The function of multiplier is formation of this concentration gradient, and exchanger का function है maintenance of concentration gradient. कि ये form तो हो गया, अब इसको maintain कौन करेगा? Exchanger करेगा. Now first we would discuss the counter current multiplier. Counter current multiplier means, counter current का मतलब हमको समझा. Multiplier में ऐसा है कि concentration gradient create हो रहा है multiples में. कैसे? Start with this first step. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डायग्राम लगता है जब आप बुक में से पढ़ने लगोगे, तो यहां पे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में assume that we are assuming that everywhere in the medulla the concentration gradient is 300, which is equal to ECF everywhere else in the body. अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये 300 वाला फ्लूइड आपके ascending limb में पहुंचना शुरू होता है, ascending limb has the ATPase pumps. The active transport of electrolyte happens here. तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का कुछ मीनिंग नहीं रहता, ये पंप काम करेंगे ही करेंगे. तो दीज पंप्स आर व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू सेंड द इलेक्ट्रोलाइट मेजरली NaCl इनटू द इंटरस्टिशियम. ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब करना शुरू करेंगे, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और फ्लूइड, टिबुलर फ्लूइड का, ल्यूमेन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. तो ये हो गया 200 और इधर का हो गया 400. अब इसकी एक चीज और ध्यान रखनी है कि
कि ये जो पंप काम करते हैं इनका एबिलिटी इतना रहता है कि ये 200 का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते जाते हैं हर बार बिटवीन द ल्यूमेन एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो 200 और 400 कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया? 200 का। अब स्टेप 3 में क्या हुआ कि आपका फ्लूइड पीसीटी के थ्रू आ रहा है विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज प्लाज्मा 300 मिलीऑस्मोल, लेकिन जब ये नीचे उतरेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको किसको फेस करना पड़ेगा? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को, जो है 400 पे। अभी वो 400 पे हो गया है। अब 300 एंड 400, तो अब यहां पे क्या होगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर वाटर, सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिकॉज यहाँ पे 400 है तो उसके इन्फ्लुएंस में पानी जो है बाहर ऑस्मोसिस हो जाएगा एंड अंदर हो जाएगा ये 400 इक्वल टू द इंटरस्टिशियम। ओके, so this 400 now it is present in the descending limb and it will reach to ascending limb. तो next step 4 में क्या हो रहा है? 400 मिलीऑस्मोल का फ्लूइड आगे जाएगा आपके ascending limb में। तो जब ये 400 मिलीऑस्मोल का फ्लूइड ऊपर जाएगा, again the pumps are working. What they do? They will make the active reabsorption of electrolytes, which is NaCl, and what it does, it will make the concentration of medullary interstitium from 400 to 500, क्योंकि NaCl आ रहा है। अब ल्यूमेन से NaCl बाहर आ रहा है तो ल्यूमेन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, एंड एज आई टोल्ड यू कि पंप की एबिलिटी इतनी होती है कि इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में वो 200 मिलीऑस्मोल का गैप हमेशा रखता है। तो इधर का 300 और इधर का हो गया, अब आपका इंटरस्टिशियम का हो गया है 500। नाउ स्टेप 6, इन स्टेप 6 व्हाट विल हैपन, this 300 fluid is coming from PCT, it is getting down, and here as it gets down, it will get the osmolarity of 500 in the interstitium. So यहां से इसने क्या शुरू कर दिया? वाटर का रीएब्सॉर्प्शन, एंड जो ये 300 पे आ रहा था वो हो गया 500 पे। अब ये 500 का फ्लूइड पहुंचेगा इधर, और यहां पे 500 का फ्लूइड पहुंचेगा, तो इसको दिस विल मेक 700, this will make 600 and here it will make 400. Again 200 का gap हो गया. So likewise, every time as the fluid passes through loop of Henle, multiplication of the concentration gradient created, and because of the repetition of these steps 4 to 6, there is 1200 milliosmol concentration of interstitium is created here at the tip of loop of Henle, which is the deepest portion of medulla. This is the maximum osmolarity concentration of medullary interstitium, which is created through counter current multiplier system. Okay, so let's revise once the steps. Step 1, assume that loop of Henle has the same osmolarity as plasma everywhere, 300 milliosmol. Step 2, active reabsorption of electrolytes at thick ascending limb of loop of Henle starts, and it will make the establishment of 200 milliosmol per liter concentration gradient, means 400 in the interstitium and 200 in the tubule. After that, step 3, in descending limb of loop of Henle, the fluid comes in equilibrium with interstitium, which is 400 milliosmol. In step 4, hyperosmotic fluid reaches to ascending limb of loop of Henle, and step 5, active reabsorption of electrolytes at thick ascending limb of loop of Henle. तो ये जो रिपीटेशन है स्टेप 2 to 5 का, ये बार बार होता रहता है, and it will create the concentration of 1200 milliosmol per liter in medullary interstitium. राइट, सो ये स्टेप्स आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में. वो डायग्राम तो मस्ट है. दिस डायग्राम इज मस्ट टू ड्रॉ इफ काउंटर करंट इज आस्क्ड. ये पूरा लूप का डायग्राम ऐसे ही बनाना है. उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट से अपने स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट,
moving to the next step of counter current. The counter current next step is counter current exchanger. मल्टीप्लायर से क्या हो गया, क्रिएट हो गया 1200 का. अब ये 1200 का क्रिएट तो हो गया, इसको मेंटेन करना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा, जैसे अब आपने यहाँ पे ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले ने क्या किया, यहाँ पे NaCl निकाल के रखा. सो NaCl इज हियर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या होगा कि अगर आपका कैपिलरी फ्लो कर रहा है, ठीक है, कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, पेरिटिबुलर कैपिलरी में. सो इफ द ब्लड फ्लो कम्स फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, व्हाट इट विल डू, यहां से ये 300 जो कॉर्टेक्स का इंटरस्टिशियम है उसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, उसका ऑस्मोलैरिटी 300 है. यहां पे ऑस्मोलैरिटी मेड्यूला का है 1200. सो व्हेन द ब्लड comes from 300 to 1200, what it will do, whatever the NaCl accumulated here, it will take all this NaCl and it will go to the venous drainage then. तो यहां से NaCl पूरा वॉश आउट करके ये ब्लड ले जाएगा और यहाँ पे छोड़ जाएगा वाटर. तो ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था 1200 का, ये खत्म हो जाएगा. इसलिए इसको मेंटेन करना पड़ता है. एंड 1200 के मिली ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यू वांट दैट NaCl वॉट एवर इज रीएब्सॉर्ब्ड, इट शुड रिमेन हियर, इट शुड नॉट बी वॉश्ड ऑफ. तो उसके लिए वी हैव द स्पेशल अरेंजमेंट विच वी कॉल वासा रेक्टा. वासा रेक्टा इज अ लूप, अगेन अ लूप ऑफ पेरिटिबुलर कैपिलरी. इट्स नॉट अ स्ट्रेट कैपिलरी, इट्स अ लूप. तो लूप होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये जो है वो काम कर रहा है loop of Henle, right? And loop of Henle is making this concentration high by reabsorption of NaCl here. तो क्या करेगी, जब वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा इसके पैरेलल ही घूम रही है, तो वासा रेक्टा में जो ब्लड आ रहा है वो 300 मिली ऑस्मोल पे आ रहा है. As the blood enters into the medullary interstitium, this capillary deeps down into medullary interstitium. ये क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को अपने अंदर ले लेगा एंड वाटर को छोड़ देगा. ठीक है, तो सॉल्यूट इधर सॉल्यूट है इसके पास. अब क्या करेगा, एज इट मूव्स टूवर्ड्स इट्स असेंडिंग डायरेक्शन, व्हाट इट विल डू, इट इज अगेन मूविंग टू 300. सो व्हाट इट विल डू, इट विल अगेन लीव द NaCl हियर, सॉल्यूट्स हियर, एंड टेक द वाटर इन. तो जो प्रोसेस यहां से यहां हो रहा था, वाइल डिसेंडिंग डाउन द ब्लड, while ascending up the blood, there is reverse movement of the solutes and solvent happen, and this solute will remain, यहाँ पे absorb हुआ, यहाँ पे छोड़ दिया. तो NaCl will be recirculated in this loop only, so the concentration is maintained at 1200 milliosmol. Okay, so this is the role of counter current exchanger in the maintenance of higher osmolarity of medullary interstitium. Now we move to the next part, that is role of urea. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि यूरिया का हम बाद में डिस्कशन करेंगे. यूरिया हैज द रोल इन द मेकिंग हाइपरटोनिक मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हमने क्रिएट कराया था काउंटर करंट के थ्रू, उसमें यूरिया का भी रोल होता है. तो उसके लिए पहले देख लेते हैं कि यूरिया ट्यूब्यूल के थ्रू प्रोसेस कैसे होता है. सो एज द यूरिया मूव्स फ्रॉम दिस PCT to loop of Henle, then DCT, and then collecting duct. Okay, so as the urea moves from PCT, it will be reabsorbed, and 40 to 50% of filtered urea is reabsorbed in PCT only. As the fluid moves to descending limb of loop of Henle, this is permeable for urea. Okay, next, उसके बाद as the fluid moves up in ascending limb, in DCT, and in collecting duct, these are impermeable for urea. ठीक है, तो 40 to 50% जो लोड है यूरिया का,
40 to 50% इज रीएब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी. अब बचा कितना, लगभग 50%. तो 50% कैन बी एक्सक्रीटेड आउट, बिकॉज इसके आगे तो इम्परमिएबल ही है, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. लेकिन जो यूरिन का एक्सक्रीशन, यूरिया का एक्सक्रीशन रेट है, दैट वेरीज बिटवीन 20 to 50%. ये वेरिएशन कहां से आता है, ये वेरिएशन आता है एडीएच के थ्रू. ठीक है, तो एडीएच क्या करेगा, यहां पे अगर हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच के एक्शन की, एडीएच व्हाट इट डज, एडीएच मेक्स द वाटर reabsorption, right? If the water reabsorption takes place continuously, और ऊपर सॉल्यूट का हो ही गया है, तो मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते पहुंचते फ्लूइड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, एंड इट इज इजी फॉर यूरिया टू डिफ्यूज आउट. तो यहां पे यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन हो सकता है when the channels are open like UT A1 and UT A3, and ADH also plays a role in the opening of these channels. Okay, so जब यूरिया अगर ADH है तो ADH की प्रेजेंस में वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, वाटर रीएब्सॉर्ब होते होते यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यूरिया के चैनल्स ओपन होंगे एंड यूरिया विल बी पैसिवली डिफ्यूज्ड आउट इन द इंटरस्टिशियम. अब क्या हो गया, इंटरस्टिशियम में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, तो यूरिया आगे इन द इंटरस्टिशियम जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, दैट इज परमिएबल फॉर यूरिया. सो यूरिया विल एंटर इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अगेन, एंड इट विल गो अप अगेन. हियर इट इज रीएब्सॉर्ब्ड, इट इज, तो ये जो साइकिल है, यूरिया इस साइकिल में मूव करता रहता है. Okay, so urea gets recirculated and it will create the osmolarity, higher osmolarity of medulla. So इसका जो contribution है अराउंड आपका जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी हमने बात करी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की 1200 मिली ऑस्मोल, तो इसका जो ऑस्मोलैरिटी है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 40 to 50% इन इट. तो इसका मतलब 600 मिली ऑस्मोल काउंटर करंट क्रिएट करता है और 600 मिली ऑस्मोल यूरिया क्रिएट करता है. ओके, सो दिस इज हाउ द मेड्यूलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी is created and maintained, which is a prerequisite of concentration of urine. Okay, और दूसरा prerequisite क्या था? The presence of ADH. Now a short discussion on ADH.